السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، شو کا آغاز کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ ویٹنگ روم سے. بات سنو، یہ کاہے کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ نظر نہیں آتا پہ سی پیک آیا خوشیاں لایا. سی پیک دی خوشی ہے، کوئی سنڈے دی سالگرہ نہیں. صاحب بہادر لو صاحب بہادر کی کمی. ملک وچ سی پیک آ گیا جے، ساڈے نال خوشیاں مناؤ. ہن ایتھے دودھ دیاں نہراں ہی بہن گیاں. ہاں جی، بلکہ دودھ دی نہر سویز بہے گی. واہ 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 واہ. اچھا کیا ٹریجڈی ہے کہ پچھلے ایک تواتر سے ہمارے میڈیا میں نہر سویز اور سی پیک کی بڑی مماثلتیں نکالی جا رہی ہیں کہ جس طرح نہر سویز نے آ کے نقشہ تبدیل کر دیا تھا. لیکن اب بھی سینسیبل لوگ ہیں جو نشاندہی کر رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. 5.5 ارب ڈالرز سالانہ صرف راہداری لیتی ہے نہر سویز. لیکن اگر آپ نے مصر کے حالات دیکھنے ہوں تو آج بھی دور مت جائیے، قاہرہ کی کچی بستیاں دیکھ لیجئے. اور یہ جو سو کالڈ پوش علاقے ہیں وہاں سوائے 10% بھی نہیں ہوگا، وہ 10% علاقہ ہے، اس کے علاوہ تھرو آؤٹ غربت نظر آتی ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا ابھی یہ سی پیک آ کر تمہیں خوش و خرم کر جائے گا؟ صاحب بہادر ساڈے لیڈراں نے تے سانو ایہو ہی آکھیا ہے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں صاحب بہادر نہیں ہوں. ویسے لگ تسی رہے ہو صاحب بہادر. ایسے ہی خام کا لگ رہا ہوں. جو صاحب بہادر ہے ان سے جا کے کہو. کون ہے صاحب؟ تمہیں نہیں پتا صاحب بہادر کون؟ سب کیا پتا. یہ ہے صاحب بہادر. اب انہی سے بات کرنا. یہ تو نواز شریف ہے پیا. اصل تے انہوں نے مطلب ہے کہ چھوٹے صاحب بہادر تے تسی ہی ہونا. نہیں میں چھوٹا ہوں. چھوٹے صاحب یہ چھوٹے یہ ہیں. صاحبہ دی سیل لائی ہے. اچھا ہے کنے کول بھی چھوٹا ہی ہے. کون چھوٹا؟ یہ کول چھوٹا بھی ہے نہیں جڑا ایڈا ہے ایڈا. حمزہ شبا. ہاں ہوا حمزہ. اس کی تصویر ہی نہیں ہے. ہیلو بھائی بنے نے ان دی تصویر چھکیندا کوئی نہیں. اسے تے ہی سنیا صاحب بہادر سی پیک آئے گا تے ساڈیاں زندگیاں بدل جان گیا. اور بجائے ٹولیاں ٹول اگیا صاحب بہادر بولنا ہی نہیں ہوتا، سانو صرف ڈاس سے رکھیا ہے. واہ 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 واہ. اچھا تمہیں اس بات کا آج تک اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس طرح کے جتنے مرضی لاکھوں کروڑوں پروجیکٹس لے آؤ، جب تک ان پروجیکٹس کے اندر کرپشن کی آمیزش رہے گی، کرپشن کی لعنت رہے گی، برکت اٹھ جائے گی. کیونکہ برکت اور کرپشن کبھی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تم خود ہی بتاؤ، اگر دودھ میں دہی ڈال دیں چاہے تھوڑا ڈال لیں، پھٹ ویسی پھٹ ویسی نا، پھٹکڑیا مان ویندے پھٹکڑیا. کی کہنے ہیں؟ یعنی پھٹ جائے گا، جی ہاں دودھ خراب ہو جائے گا. اسی طرح یہ جتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں نا، نہر سویز جس سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، یہ بھی ایک طرح کا دودھ ہے. دودھ کی نہریں ہوتی ہیں. یہ سی پیک بھی دودھ کی نہر ہے، آپ کی موٹر وے بھی دودھ کی نہر تھی. لیکن جہاں جہاں اس کے اندر کرپشن کی آمیزش ہوتی جائے گی، برکت اٹھتی جائے گی. یہ بھائی کان کھول کر سن لو، یہ خوشحالی آپ لوگوں کی نہیں ہے، یہ ان چند لیڈروں کی ہے. ہر معاشرے میں حسنی مبارک بیٹھے ہیں. حسنی مبارک $40 بلین کے تو اس کے ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں. اس کے علاوہ اس نے کہاں کہاں کیا کچھ چھپا رکھا ہے ابھی تک میڈیا کی یا حکومتوں کی نظر وہاں تک نہیں گئی. تسی ایڈے سیریس ہو گئے، سانو ٹول دا کرایا پہ رہے ہیں. ایک دلچسپ بات اور کی جا رہی ہے میڈیا میں کہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، وہاں بھی انفراسٹرکچر آیا، وہاں پر تو کرپشن نہیں ہوئی. اور اگر ہوئی بھی ہے تو اس قدر معمولی کہ اس نے پروجیکٹ کی جو خوبصورتی ہے اس کو مجروح نہیں کیا. آپ یقین کیجئے یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو لیڈروں نے بنائے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے
کہ بھی پروجیکٹ بھی ہوتا ہے, جمہوریت بھی ہوتی ہے, کرپشن بھی ہوتی ہے, یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. سارا ڈول والے دا کی قصور ہے. اچھا بیٹھے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آؤ جی آؤ. انشاءاللہ تعالی کچھ نہیں تھیندا. بیٹھ جاتا ہے لالا. ہاں میرے سارے آج دیکھ نے تو اچھا یہ ڈھول والے کو فارغ کر دیں. ٹھہر جو ہو سکتا تھوڑا موڈ بن جائے. سر باقی سیریس گل ہے, گوادر نہ کوئی فرق نہیں پینا. گوادر کے ساتھ فرق پڑتا اگر گوادر کسی ویژنری نے, کسی عوام کے ہمدرد نے انٹروڈیوس کروایا ہوتا. یہ اصل میں برین چائلڈ چینیوں کا تھا. اب زرداری صاحب اس کے اوپر جھگڑ رہے ہیں کہ یہ میرا برین چائلڈ تھا. استغفر اللہ. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جناب تختی میں نے لگائی. تختی تو آپ نے یوم تکبیر کی بھی لگائی تھی, آپ اسے بھی کلیم کر لیں. اور عقل کے اندھوں سمجھنے کی کوشش کرو, یہ پروجیکٹ اس کا تھا جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, جس کا سراسر فائدہ ہے, جس نے اپنے مقصد کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہے. کیوں؟ آپ ڈھگے بے بس مویشیوں کی طرح استعمال ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. یہ چائنا کا برین چائلڈ تھا. تینوں کنیا نہیں کیا اپنا ویٹ ریڈیوس کر, تیری وجہ تو سانو سب نو ٹگا کہن ڈے. اچھا ڈھول والے سمجھ رہے پروگرام تک ہے کہ سانو پنچایت چ لین دے, وہ چودھری صاحب کو فیصلہ کرن دے. انہوں چائنا لے جاؤں میں. یہ نہیں سمجھیں گے سر, یہ نہیں سمجھیں. یہ اس وقت بھی نہیں سمجھیں گے جب میں انہیں گوادر کے حالات بتاؤں گا. اچھا اے ساڈے نال نہیں جے, اگو ڈھول بجائے نا تو پیسے یہی دیسی. جی جناب, گوادر کے حالات آپ بیان کر رہے تھے. 1 لاکھ کی آبادی کے لیے پینے کا صاف پانی نہیں. پورے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں 1 لیڈی ڈاکٹر ہے. یعنی وہاں سے پھر کراچی لے کے جایا جاتا ہے. جی جناب, پورے 650 کلومیٹر کا سفر کر کے مسافر بہت بری حالت میں وہاں پہنچتے ہیں. اور عام طور پر یہ بیچارہ مسافر راہی ملک عدم ہو جاتا ہے. اور تینوں کنی بار ایسے ڈھول ضائع کرتا پیا پتر, پانی تے ڈھول ضائع نہیں کریدا ہوندا. وہ بڑی پتہ کی بات کر رہا ہے, اس نے ٹھیک بجایا. جی گل تے بجا رہے انہیں ساڈے کولوں کرایہ لے کے جانا ہے. وہ بدنصیبی ہے اس معاشرے کی کہ جو دانشور ہے, جو سینسبل آدمی ہے, وہ یا تو اپنا ضمیر, اپنے قلم, اپنی زبان بیچ دے اور پھر وہ کروڑ پتی ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اپنی انٹیگریٹی, اپنی سول, اپنی روح کو انٹیکٹ رکھتا ہے تو چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو, اس جیسوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں. جو انہیں حساب لا لیا ساڈے سب جو امیر بندے دوویں ہی نے, سانو منگنا نہ سمجھ رہے. تم ہو ہی مانگنے والے, ہیلو اس لیے کہ تم نے زحمت ہی گوارا نہیں کی پوچھنے کی کہ وہ گوادر جسے تم مستقبل کہہ رہے ہو ہمارا, وہاں پر لڑکیوں کے لیے ایک بھی کالج نہیں ہے. کیوں چکڑیاں دکھا رہے جی کوئی نہیں ہے. بابا جی تم تو پھرتے رہتے ہو, تمہیں نہیں پتا. اے لو, پھر لڑکیاں بیچاری کیا کریں؟ یہ تو کہتے ہیں ہم لڑکیوں کے لیے بڑی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. یہ کیا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں؟ ڈیولپمنٹ بھی وہاں پر صرف 10% ہے. وہ بڑا حسین و جمیل گوادر بنایا جا رہا ہے. اس لیے کہ ایسی جگہیں, یہ جو جنت نظیر جگہیں ہوتی ہیں نا, اس ملک کی اشرافیہ کے لیے ہوتی ہیں, عوام کے لیے نہیں ہوتی. یہ جو بوائز کالج ہے اسی کو استعمال کیا جاتا ہے ایوننگ میں گرلز کالج کے طور پہ. اب آگے سے بہانہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی وہاں پر پڑھنے میں دلچسپی کوئی نہیں رکھتا, تم انہیں انسینٹیو دو گے تو وہ پڑھیں گے نا. آپ اندازہ کریں سر کہ پچھلے دنوں گوادر پورٹ کا افتتاح کرنے پرائم منسٹر صاحب گئے. پھر وہاں پر مقامی صحافیوں کو پنڈال میں آنے کی اجازت نہیں تھی. جبکہ اسلام آباد سے یہ ڈھیروں ڈھیر صحافی لے کر گئے ہوں گے, کیونکہ وہ تو ارینج کرنے ہوتے ہیں نا پی آئی ڈی نے, وہ ارینج کرنے ہوتے ہیں ڈی جی پی آرز نے, وہ تو آپ لے جائیں گے. لیکن مقامی صحافی اگر ایک بھی باہر رہ گیا تو بڑے افسوس بلکہ شرم کی بات ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر چند مقامی صحافیوں کو اس لیے باہر رکھا گیا تھا کہ انہوں نے یہی سوال اٹھانے تھے. سر یہ صحافیوں کی بات کر رہے ہیں, وہاں کے منتخب نمائندوں سے ملنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ٹائم نہیں دیا, اور وہ بھی گلا کرتے پائے گئے کہ جناب ہمارے مسائل تو سن لیں. وہ تجھے ایدھی والی ڈھول بجانا میں تین جانو مار دے سی. تم کیوں خلاف ہو ان لوگوں کے؟ سارے دو میں چگل خور نے توڑے اے بھی تے ہے بھی. میرا سوال یہ ہے کہ 46 ارب ڈالر آندہ پیے, یہ سی پیک کے نام. جی ہاں, ترقی والی نہیں تھی بھائی, کیوں؟ اس کی بنیادی یک سطری جواب ہے کہ تم قرضوں کے بوجھ تلے اس قدر دب چکے ہو. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو تحفے میں دیے جا رہے ہیں یہ پیسے؟ یہ بھی قرض ہے. بابا جی گل کرو, ساڈے جیباں کٹن تے نہیں آئے. ہائے ہائے, ہم مانگ رہے ہیں قرضہ, ہم کو ان کے پیچھے جاتے ہیں, ہم مر رہے ہیں قرضہ لینے کے لیے. کیوں دیتے ہیں ہمیں قرضے کے؟ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ ایک زرعی ملک ہیں, اس لیے کہ آپ کے ہاں
मादनी दौलत बहुत है। ये बात वैसे दुरुस्त है, उसने बेवकूफी में फिर एक बड़ी अहम बात कर दी। सर अब तो कर्जे देने वाले हमसे तंग आ गए हैं। साहूकारों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई खुदारा अब कर्जे लेने बंद कर दो, हालांकि हमारा कर्जे लेना उनके कारोबार की चमक का बायस है। मैं तो समझता हूं कि इस कौम को एहतजाज करना चाहिए उन साहूकारों के खिलाफ कि कमबख्तों, इनकी अकल पर तो बंधी हुई है पट्टी। ये तो है एक मक्कार, ऊपर से नाबीना। इन्हें तो पता ही नहीं कि हम अगली नस्लों को, उसके मुस्तकबिल को किस तरह रहन रख चुके हैं। तुम ही ख्याल करो, तुम ही शर्म करो, तो तुम ही खुदा खौफी कर लो। मैं तो कहता रहा ढोल ना लैके चलिए, तू जिद की लै चलिए। और करप्शन की नित नई मैनिफेस्टेशंस देखिए। माशरे होते हैं जिनमें साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है कि इस बंदे ने ये चीज इजाद की, उसमें ये चीज लगाकर 4 चांद लगा दिए, 4 हाथ आगे। यहां हम क्या करते हैं, करप्शन का कोई ना कोई नया तरीका। आप अंदाजा कर लें, गुज़श्ता 15 दिन में लाहौर का ट्रैफिक दोज़ख का मंजर पेश कर रहा है। ये जो वर्ल्ड सिटी है, इसके साथ पार्किंग का ठेका न जाने किसने किसको किन किन बुनियादों पर दे रखा है। 6-6 कतारें हैं गाड़ियों की, वो लगी। एक दफा आप गाड़ी पार्क कर दें, निकालना अजाब हो जाता है। आप जरा 2 मुरिया पुल के पास उसके करीब से गुजर कर देख लीजिए। लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं, क्या वजह है कि ट्रैफिक कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, जराइम क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा एक दोस्त था न्यू हॉस्टल में, गवर्नमेंट कॉलेज में, आजकल बहुत बड़ा बैंकर है, वो बड़ा सूखा सड़ा, उस वक्त भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। तो उससे पूछते कि तुम्हारी सेहत की बर्बादी की वजह क्या है, तो बड़े इत्मीनान से कहा करता था, यार मुझे समझ नहीं आती, बाकायदगी से 2-2 पैकेट सिगरेट भी पीता हूं, वर्जिश भी नहीं करता, खाता पीता भी कुछ नहीं हूं, फिर भी सेहत पता नहीं क्यों डाउन हो रही है। तो शहबाज शरीफ साहब, इन चीजों पर गौर कीजिए कि इसी के अंदर बर्बादी के बीज हैं। सर सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ी ऑब्जर्वेशन दी है कि पंजाब में ठेकों के अंदर 35% करप्शन के पैसे होते हैं, किकबैक्स हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को इस चीज का इल्म है तो हुकूमत पंजाब का नहीं होगा। नहीं जनाब, ये भी सुन लीजिए। सारे आते ने कि सड़कों ते लारियां मोटरां इन्होंने बड़ी तरक्की आंदी, तुसी की गल करते पए हो। अगर तरक्की लारियों मोटरों से, सड़कों से, रेलवे ट्रैक से होती तो क्या बात कर रहे हैं आप। अंग्रेज इस खित्ते की किस्मत बदल चुका था। भारत और पाकिस्तान, यहां पर आबादी की अक्सरियत आज भी पॉवर्टी लाइन से नीचे है, बल्कि आपका 80% मुल्क गुर्बत की दहलीज पे रहता है हमेशा। जनाब, तरक्की आती जरूर है, लेकिन सिर्फ वहां तक जहां हुक्मरान चाहते हैं। यानी चूनिया स्टेट को डेवलप करना था, इर्द गिर्द की सारी जमीनें खरीद ली। आपने रिंग रोड कहीं बनानी है, ये रिंग रोड, लाहौर की रिंग रोड देखें कब से बननी शुरू हुई थी। मेरा ख्याल है 6-6 मरतबा जमीनें खरीदी गई, लोगों को गलत फहमियों में मुब्तला किया गया, और 6-6 मरतबा ये मंसूबे चेंज हुए। जब एक रिंग रोड का या मोटरवे का या किसी शाहराह का, किसी बंदरगाह का, किसी एयरपोर्ट का मंसूबा आता है, तो एक विजनरी, एक लीडर, वो देखता है कि अगली 2-3 नस्लें किस शान और शौकत से जिंदगी गुजारेंगी, इसको कैसे यूटिलाइज करेंगी, हमारे लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगी। लेकिन यहां क्या होता है, फटाफट वो पटवारियों को बुलाया जाता है, उन्हें कहते हैं नीचे बस्ता खोलें और लट्ठा बिछाएं, लट्ठा, उस लट्ठे से बताएं कि ये रकबा किसका है, वो किसका है, ये किसका है, फलां किसका है। फौरन खरीदें, क्योंकि ये सिर्फ हमें पता है कि रूट क्या होगा। और ये है वो करप्शन जिसका राज है। और मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि करप्शन नफी है बरकत की। वैसे सर समझ नहीं आ रही भी हो की गया जी। साडी पिछली नस्ल ने ते मुल्क बना लिया जी पूरा, इन्हां कोल एक पेंचर नहीं लगन दिया, इन्हां कोल कोई काम नहीं हो रहा जी। बाबा कोई और मिसाल नहीं सी तेरे को? पेंचर की मिसाल तेरे को? नहीं, ये ठीक मिसाल है, इसलिए कि ये नाकारा मिसमैनेजमेंट, मैं हमेशा कहता हूं मिसमैनेजमेंट से अटा पड़ा है ये माशरा। हर कोई मिसमैनेज कर रहा है हर चीज को। बाकी वो जो पिछली जनरेशन थी वो अंग्रेज की ट्रेंड जनरेशन थी। अंग्रेज का बड़ा रोल है इस आजादी में। उसी जनरेशन ने फैज अहमद फैज पैदा किए, उसी जनरेशन ने अहमद नदीम कासमी और मुनीर नियाजी पैदा किए, जफर इकबाल पैदा किए, डॉक्टर अब्दुल सलाम पैदा किए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पैदा किए, समर मुबारक मन पैदा किए। उसी जनरेशन ने ख्वाजा खुर्शीद अनवर पैदा किए, उसी जनरेशन ने इशफाक अहमद पैदा किए। आप एक नहीं पैदा कर सके, आप अनाड़ी पैदा कर रहे हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ, मैंने
पिछले हफ्ते भी कहा था कि मुजावर पैदा किए, मुरीद पैदा किए, ग्रेजुएट पैदा किए। क्यों जी साडी जनरेशन ने की नहीं पैदा कीता? क्या पैदा किया? ऐ नहीं देख रहे? ना यार नहीं। ये साडी जनरेशन ही है। बस जुगत और बकवास और कुछ भी नहीं। किन्नी बार ये तो नहीं बुझाना तो दिनों रात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज हम चलेंगे न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क एक साल के लिए अमेरिका का कैपिटल भी रहा है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है और इब्तदान इसका नाम न्यू एम्स्टरडैम सिटी था। फिर जब ये बरतानवी तसल्लुत में गया तो ड्यूक ऑफ यॉर्क के नाम के साथ इसे मंसूब कर दिया गया और इसे न्यूयॉर्क कहा जाने लगा। ये 5 बड़े बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। सर वो किहड़ी जगह जिथे लंबी लंबी इमारतां ने वो न्यूयॉर्क ही है? वो न्यूयॉर्क सिटी का इंतहाई लाजवाब और शानदार हिस्सा है। इसे मैनहट्टन कहते हैं। इस जजीरे का नाम मैनहट्टन है और ये जजीरा 1626 में एक डच ताजर ने सिर्फ $24 में खरीदा था। ये सन 2014 का सबसे नाखुश शहर करार दिया गया। वो क्यों सर? बस लाइफ ही ऐसी है, अननेचुरल लाइफ है। यहां पर कत्ल कम होते हैं, खुदकुशियां ज्यादा होती हैं। माय गॉड। इस शहर के वैसे तो लातादाद लैंडमार्क्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी वजह शोहरत ये होनी चाहिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखें आज भी इसी शहर में पड़ी। आप किथे हो? यार किस कदर अहमकाना सवाल। उसकी आंखें महफूज है, वो तो मर गया बड़ी देर से। सर आड़ू की क्या चीज महफूज की जा सकती है? मैं नहीं कुछ भी कहना चाहता। थोड़े ज़हन चाहिए ही है। फिर जनाब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहां पे था जो 9/11 की नजर हुआ। फिर सेंट्रल पार्क 850 एकड़ का बहुत बड़ा पार्क है। इसे बीट करता है वैनकूवर का जो आप पिछले दिनों देख कर रहे हैं, स्टैनली पार्क। स्टैनली वो 1000 एकड़ का पार्क। अच्छा सर, सुना है यहाँ के लोग अमीर बहुत हैं। अमीर इसलिए कि हब है बिजनेस की। लेकिन वो भी रोटी हाथ तक खवा सकते हैं। पूरी दुनिया में इसकी शोहरत है और यहां पर 2 बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, नैस्डैक है, फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज। फिर ये गढ़ है, महवर है पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी का। यहां पर हर 21वां शख्स मिलियनेयर है। फिर यहां का एक और बड़ा अहम लैंडमार्क वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जी हाँ। ये 305 फुट ऊंचा। आपने पिछले दिनों देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप की फतह पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को कार्टूनिस्ट ने किन किन हालों में दिखाया। एक जगह सिगरेट पी रहा बैठा हुआ और कह रहे की कर बैठे हो। पता है क्यों? डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक इस शहर से है। अच्छा, मतलब कि सौगात जड़ी है न्यूयॉर्क ने दी। जी, ये न्यूयॉर्क की सौगात। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी असल में इसका डिजाइनर वही था जिसने आईफल टावर डिजाइन किया। जी सर। सर आईफल गुस्तावे। जी। तेरा पासपोर्ट नहीं बनया है? तेन सारे मुल्कों का पता है। कराची जाना भी तेरा वीजा लगता है। फिर जनाब यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर भी यहीं पे। ये 39 मंजिला इमारत 509 फुट ऊंची है और इसके लिए जो खित्ता अराजी इंतहाई कीमती जगह मुहैया की गई थी, वहां के मल्टी बिलियनर रॉकफेलर ने ये तोहफे में दी थी कि मैं दुनिया को अमन तो नहीं दे सकता, लेकिन अमन के लिए बैठने की जगह दे सकता हूं। यहां पर गैर जरूरी तौर पे हारन बजाने पे आपको $350 जुर्माना हो सकता है। तो जो कोई मरीज जा रहा हो, मरीज हॉर्न बजाता जा रहा होगा। नहीं फर्ज करो अचानक से तबीयत खराब होती है, भाई अचानक तबीयत खराब होएगी तो एम्बुलेंस बुलाएगा या अपनी गड्डी में एम्बुलेंस बना लेगा? तो उतो दे किसी पुलिस वाले का साला तो नहीं है। सर हसन के बजाय कही होता है कि बस बात तो वो ठीक कर रहा है। हसन दे बजाय नहीं, बात तो वो ठीक कर रहा है। कौन कौन बात ठीक कर रहा है? नहीं वाकई सर हसन दे बजाय तारू मुबारकबाद देनी चाहिए। अच्छा, यहां पर 50% से ज्यादा तलबा मोटे होते हैं। वो क्यों? खा खा के टेंशनें भुगत भुगत के
एक अननेचुरल लाइफस्टाइल को अपना के ये फास्ट फूड की वजह से। ਇਹ ਆੜੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 버ਗਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ये तेज दौड़ सकता ही नहीं। ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਜਿਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ 버ਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। और इतना बड़ा मोटरसाइकिल कहां से आएगा? अब हार्ली डेविडसन इसके लिए तैयार पड़ा हो है। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਰਾਸਪੁਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ। अच्छा सर, आपने हार्ले डेविडसन देखा? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਕਾੜਾ ਪੰਦਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਆੜੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा हनी, तुम्हारे लिए दिलचस्प बात, इस शहर में 35,000 से ज्यादा ख्वाजा सरा है। ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 35,000 ਦੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਤਰੀਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੰਗ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। फिर देखा ਕਿਉਂ ਜੀ? हॉट बीफ सैंडविच, वाह वाह, आज स्टार्ट ही गोश्त आ गई। इसमें गोश्त पर नमक और हल्की काली मिर्च लगाएं। ਹਾਂਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਇੰਜਨ ਕਰੇਗਾ ਇੰਜਨ। फिर आप इसके साथ एक बड़ी शानदार टोमेटो ग्रेवी बनाते हैं, जिसमें आप अदरक और जिंजर की एक माइल्ड सी पेस्ट भी बनाते हैं, वो इसके साथ लगाइए। इसके बाद फिर एक बारीक सा कोट आप मस्टर्ड का लगाते हैं। फिर रखते हैं बीच में फ्रेश सैलेड, मतलब आइसबर्ग के लेटस के 2-3 बड़े मोटे मोटे पत्ते और उतना ही बड़ा टमाटर कटा हुआ गोल और 2 अनियंस, मतलब रिंग्स कटे हुए अनियन रिंग्स जो है वो। फिर आप दूसरा पीस ब्रेड का ऊपर रखें। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तब उसके बाद ये चीज ले, ये ले, इतना तो मकान बनन डे है। ये ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे ख्याल में कितने का होगा? सर कितने होएगा? $20 का होगा ज्यादा। $20 2,000 रुपए है सर। तो हाँ, बच्चे की शर्ट आ जाती सर। अच्छा, फिर एक बड़ी लाजवाब चीज, मीट बॉल्स विद नूडल्स। कोफ्ते। हाँ, कोफ्ते, और बड़े शानदार। इसमें आप क्या करते हैं, कोफ्ते जिस तरह हमारे रूटीन के कोफ्ते हैं, जी जी, आप मसाले और अंडे, कच्चे अंडे कीमे में डालकर उसके बड़े खूबसूरत बड़े आला मीट बॉल्स बनाए। फिर उन्हें करें फ्राई, और फ्राई करेंगे आप ऑलिव ऑयल में। बड़े हल्के लाइट ब्राउन से होंगे ना, तो उन्हें एक साइड पे आप करें। फिर आप टमाटर, अदरक, प्याज, बेल पेपर और हैलोपिनो पेपर। अच्छा, लगता किसी ने फोन ते गल कर रहे हैं। हेलो पिनो पेपो, इधर तुम। अच्छा सिर्फ सुन लो, उथे 21% लोग अमीर ने। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ सारा 21% छड़ के थल्ले खांदे ना, सानू वो दसो। देखें, वैसे तो यही बर्गर जो मैंने पहले सैंडविच कहा है, आपको $3-4 में भी मिल जाएगा, लेकिन वो सड़क के किनारे रेडी से मिलेगा। आप जरा अच्छी जगह पे जाएं। अगर न्यूयॉर्क जाते हैं, सर ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ, $100 ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ 4 ਖਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਲਾਲ ਹੋਇਆ, ਆੜੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ $2,000 का। अच्छा जी, फिर मैं बता रहा था, टमाटर, अदरक, प्याज, लहसुन, लहसुन का पाउडर डालेंगे आप, और हैलोपिनो पेपर को काफी सारे पनीर के साथ मिक्स करके आप एक बड़ी शानदार ग्रेवी बनाएंगे। उस ग्रेवी के साथ फिर आप उबले हुए नूडल्स अच्छी तरह पकाएंगे, और उस थिक ग्रेवी में आप डालेंगे वो कोफ्ते जो आपने बना रखे थे। फिर अगले 20 मिनट हल्की आंच पर यही ग्रेवी इन कोफ्तों में रच जाएगी, और इंतहाई शानदार डिश तैयार। एक कितने दी है जी? अगर आप अच्छी जगह से भी खाएं तो $20-22 में आपको ये मिल जाएगी। अच्छा न्यूयॉर्क के कोई पाकिस्तानी इलाके नहीं है? भाई जैक्सन हाइट्स, वो बिल्कुल यूं समझे आपके लाहौर है। आपको लाहौरी फ्राइड फिश वहां मिले, पकौड़े मिले, नान मिले, आलू छोले मिलेंगे, फिर छोले और भटूरे मिलेंगे। सारे मुफ्त मिलते ने? यार मुफ्त कौन देता है? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। कोई साल बाद को मुर्शिद दा और सुनदा हुए थे। सर यहाँ पर तो काफी अच्छी फिल्म्स भी शूट हुई हैं। जी, लातादाद। इंटरप्रेटर, फिर एक फिल्म जिसका तज़किरा चंद दिन पहले हम कर रहे थे, वो इस शहर से मुतालिक नहीं है, सिएटल से मुतालिक है।
स्लीपलेस इन सिएटल, जी सर। ये न्यूयॉर्क में बनी है, आड़ू आपको भी अमेरिका गए? जून जुलाई में इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। और जून जुलाई में ये भी जाएगा। सर फिर ਇਹ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ठीक है, मत जाना। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਾ। क्यों? नहीं तो असी ना गए फिर जाओगे तुसी भी नहीं, ये मैं दस दूंगा। सिर्फ इसलिए कि वो बेचारा। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। हाँ, मिर्जा भी जाएगा, ये क्या बात है। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। अच्छा सर, आपने ये सारी जगह देखी हुई है? हाँ जी, कोई एक दफा देखी हुई है, वो तो चप्पा चप्पा देखा हुआ है। बस चलाते तो Continuous Raat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Continuous रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए बिलावल भुट्टो जरदारी और चौधरी साहब ने, जो उनके सियासी कस्टोडियन हैं। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वेरी गुड। आपका क्या हाल है चौधरी साहब? ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। अच्छा, ये काफी दिन बाद आए हैं, किधर चले गए थे? ਅਸਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, किधर ठीक कराने ले? ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। यार क्या मतलब वर्कशॉप लेके गए थे? अब बंदा वर्कशॉप में ठीक होता है? ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਮੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਆਏ हैं। अच्छा, डमी म्यूजियम की एडवांटेज लेने का माहिर है ये शख्स। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਟਿਊਨਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ। ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। कैसे हैं आप आफ्ताब अंकल? वेरी गुड, वेरी गुड। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ। नहीं, आज तो लग रहा है भाई, आज तो बड़ा निखार है, लगता है ट्यूनिंग ज्यादा ही फाइन ट्यूनिंग होगी। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ये बताइए, आपके अब्बा मोहतरम वापस आते सुनाई दे रहे हैं, किसकी इजाजत से, किस पीर ने कहा है कि वापस आ जाए? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। अच्छा जी, आप बताइए किस पीर ने जरदारी साहब को इजाजत दी है कि आ जाए? ਪੀਰ ਆਫ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। किसने? ਪੀਰ ਆਫ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਰਹੇ पीर ऑफ पिंडी शरीफ, ये कौन है? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਪੀਰ ਆਫ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਰੀफ ਕੌਣ ਹੈ? नहीं, पीर ऑफ पिंडी शरीफ बेशुमार है। वैसे तो शेख रशीद को भी पीर ऑफ पिंडी शरीफ कहते ਅੱਛਾ हैं लोग। ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਪੀਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा बिलावल, आप ये बताइए कि पंजाब में आपने बेहतरीन क़यादत दी है, कमर जमान कायरा, वाह वाह वाह, बेस्ट मैन इन द टीम। लेकिन सिंध में देखें कि एक राय पे पानी फेर दिया आपने। डॉक्टर आसिम जैसे बदनाम जमाना और करप्ट शख्स को आपने कराची डिवीजन सौंप दिया। आफ्ताब अंकल, सिंध हमेशा से कुर्बानियां देता आया है। अच्छा, हम पहले भी कुर्बानी देते थे, हम आज भी कुर्बानी देंगे। सर चाहिए लो। सर देंगे, खून चाहिए खून देंगे। ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੀ ਮੋਟਰ ਗਰਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਓ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਉਹ। चौधरी हालांकि तू आप कख नहीं, टके बंदा नहीं तू। बाकी टके का आदमी नहीं है, और जिस पार्टी में जाता है अहमियत ले लेता है। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। वाह वाह वाह। यानी नवाज लीग में था तो बड़ी अहमियत का हामिल, पीपल्स पार्टी में गया वहां उससे भी ज्यादा अहम। ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। अच्छा, पीटीआई में भी जाना है। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤਰ। अच्छा, इसी बात से मुझे ख्याल आया चौधरी, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना आई तो तुम किधर जाओगे? आफ्ताब अंकल, ये काफ लीग में जाएगा। क्यों काफ लीग में क्यों जाएगा? सिंपल लॉजिक, अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं जीतती तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन खुद करवाया है। अच्छा, और जब भी इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन खुद करवाती है तो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी जीतती है। ठीक। ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫ ਲੀਗ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫ ਲੀਗ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਾਫ ਲੀਗ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। अच्छा जी, पार्टी में एक तबका है जो जरदारी साहब की वापसी के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि जरदारी साहब आए। शायद वो समझते हैं कि चूंकि बहुत मुतनाजा है, इसलिए पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। सर सर सर, ये वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स के डायलेक्टिक्स को समझते ही नहीं हैं। अच्छा जी, ये क्या डायलेक्टिक्स है, हमें समझाइए। ये लोग को चेयरमैन साहब का आना सबोटाज कर रहे हैं। जी, सबटाइज क्यों कर रहे हैं, क्यों? इनकी वेस्टेड इंटरेस्ट है आफ्ताब अंकल, यू शुड बी नोइंग दिस। नो, आई डोंट नो, आई वुड लव टू नो दैट। मैं दस बच्चा घबरा जाता है, दबके ना मारो। नहीं नहीं, मैं कब दबके मार रहा हूं यार, हमारा प्यारा नौजवान है, एक फ्यूचर की क्यादत है, अल्लाह करे इस काबिल अगर हो जाए तो। असल गल है कि जरदारी साहब आएंगे तो अगले इलेक्शन के माहौल बननगे। इसकी क्या लॉजिक है? ये मशवरा थोड़े बिरा दिता है। नहीं, जाहिर है ये मशवरा तुम ही जैसे लोग दे सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? असल गल है कि पूरी दुनिया में फेरा टोरा करके ना जरदारी साहब के अंदर दा लीडर थक गए। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਰੈਸਟ ਦੀ। अच्छा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ, अच्छा ਵਾਕ ਦੀ,
ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਦੀ ये सारा कुछ उन्हें कहाँ मिलेगा? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ। अच्छा, यानी जेल में आकर वो अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज करेंगे और इस दौरान ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਬਾਈਆ ਦੇਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਜਾ ਸਿੰਘ ਢੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆ ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਕਾਂਬਾ ਬਾਹਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। आहा, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। भुट्टो भुट्टो ਨਾ ਕਰੋ ਦੀ ਮੋਟਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। अच्छा, मैं बहुत हैरान था कि ये नारा आमतौर पर गलत क्यों लगाते हैं लोग कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। ये उसका उलट है, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। लेकिन ये उलट क्यों? मौसूफ ने गालबन पढ़ा है, या शायद बीबी ने भी एक आध जगह गलत पढ़ दिया, लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। शायर बेचारे को छोड़ गए जिसने कॉइन किया है। जिस तरह मौसूफ ने पिछले दिनों भुट्टो दे नारे लावांगे तो दुश्मन सारे भजनगे। ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। भुट्टो दे नारे वजनगे तो दुश्मन सारे भजनगे। ये राइम्स बनती हैं, काफिया इस तरह मिलता है। वो बचपन में एक पोएम थी, वो अक्सर मैं गलत पढ़ दिया करता था। मतलब 1 2 बकल माई शू, तो मैं करता था 1 2 3 4 बकल माई शू। ਤਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆੜੂ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1 2 3 4 ਗਿਵ ਮੀ 버ਗਰ ਮੈਨੀ ਮੋਰ। तेन की तकलीफ हुई? ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ 버ਗਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 버ਗਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 버ਗਰ ਲਾ ਲਏ। यार थोड़ा तो पता नहीं दिमाग खराब है की वजह। अच्छा, मुझे ये जरूर कहता थोड़ा तो पता नहीं दिमाग खराब है। ओए विच पांडपना कीता ना आपने। अच्छा जी, आपने एक अजीब सा बयान दिया कि मैं एक सुलगती हुई सुर्ख लाइन हूं, मुझे कोई सोच समझ कर उबूर करेगा। इसका क्या मतलब? ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। अच्छा, वैसे तुम इसके प्यो को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, उसे हर बात का पता होता है। वो बहुत सियाना बल्कि बहुत कायान लीडर है। उसे सेटबैक पंजाब में मिला है, सिंध में तो आप हैरान होंगे कि पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीटें ले गया था वो इस इलेक्शन। ਅੱਜ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ 70 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। अगर 71 की तारीख दोहरा दी आपने फिर ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? I think he's referring to Bangladesh, but you are so stupid you won't understand. ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਬੜਾ ਡਾਡਾ ਐਂਕਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੀ ਕੋਈ। वो तुम्हें कह रहा है, मुझे नहीं कह रहा। आप देखिएगा आफ्ताब अंकल, अगली दफा हम ही आएंगे, पीटीआई का पत्ता भी कट जाएगा, पीएमएल-एन का पत्ता भी कट जाएगा, पीपीपी का पत्ता भी कट जाएगा। बिलावल जिंदाबाद। और लीडर साहब पीपीपी का पता कट रहे हो। ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੋਟਰ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲਾਤੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੀਪੈਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। वो क्यों? ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। अच्छा चौधरी, मेरा एक संजीदा सवाल है तुमसे। ये बताओ कि बिलावल की ग्रूमिंग कौन कर रहा है? पॉलिटिकल ग्रूमिंग इसकी कोई एक बंदा, दो बंदे कौन है जो कर रहे हैं? हाँ जी, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। यानी सियासत के असरार और रमूज कौन समझाता है बिलावल को? इसकी ट्रेनिंग कौन कर रहा है? ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋ ਜੀ, ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? एहसास मरूस कद नहीं पाया गया। मरूज नहीं, असरार और रमूज। ओए नहीं, उसकी वजह है कि बिलावल बहुत इंप्रूव कर रहा है, दिन ब दिन इंप्रूव कर रहा असल तो बिलावल साहब का मसला है, जोश च आके ना यही करते ने। है। क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵੱਲ ਰਵੇ, ਹੋਰ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। अच्छा जी, एक और सवाल मेरे को पूछना तुसी। चलें आपसे पूछ लेते हैं। ये बताएं कि अयान अली से आपकी मुलाकात हुई है? ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। नहीं, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं। चौधरी बताओ, अयान अली से मिले हो? ਸਰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ। उन्होंने ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ। वो उन्होंने हाँ जी। तो कौन मिलता कौन है? ਸਾਰੇ ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਯਾਨ ਅਲੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਵਰਕਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀਨੋ ਬੰਬੇਰੀ ਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ੀਰਾ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਅਲਮਾਸ ਬੋਬੀ ਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ यान अली ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। अच्छा ये बताओ, सारा वक्त सियासत को ही देते हो या कुछ और काम भी आता है तुम्हें? लो जज कीता है, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। अच्छा बिलावल, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे हम कि यकीनन फन्ने खिताबत, ऑरिटरी, आपने इसमें बड़ी महारत हासिल की, जस्ट लाइक योर ग्रैंडपा, जस्ट लाइक योर मदर, लेकिन मैंने महसूस किया कि आप जलसा आम उस तरह नहीं करते, आप अवाम से खिताब उस तरह नहीं करते, ना शायद कर सकते हैं जिस तरह आप किसी सेमिनार को एड्रेस करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में तकरीर करते हैं। ये फन को बड़ा आम नहीं है, और जब तक आप इसमें महारत हासिल नहीं करेंगे, आप अच्छी तकरीर नहीं करेंगे, उस वक्त तक तगड़े लीडर नहीं बन सकते आप। एडी कड़ी गल है, नवाज शरीफ तकरीर करनी आंदी है, वो लीडर नहीं बनया। नहीं, ये बात मिसाल आपने ठीक दी है, लेकिन नवाज शरीफ लीडर नहीं है। नवाज शरीफ वजीर आजम है। वजीर आजम होना और बात है, लीडर होना और बात है। भाई हम भुट्टो की मिसाल दे रहे हैं, भुट्टो वाज अ लीडर। भुट्टो को कभी वजीर आजम के तौर पे याद नहीं रखा जाता, भुट्टो को बतौर लीडर याद रखा जाता है। नवाज शरीफ 1000 दफा इलेक्शन जीत के आ जाए, वो वजीर आजम ही बनेंगे। लीडर अगर होते तो इस कौम को कुछ ना कुछ तो दे के जाते। कर तकरीर चाचा टप्पिया पे, दस हुन तू केड़ा काबिल है। मैं इसीलिए पंजाब आया हूँ, अब पंजाब में रहूंगा। मरसू पंजाब न देसू, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी हम जीतेंगे, ये बाजी, ये बाजी, ये बाजी, ये बाजी। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।